اور سب سے پہلے بات کریں کہ پنجاب میں حکومت کے باوجود ایم پی ایس کے کام رک گئے۔ ایم پی ایس کی وزیر اعلیٰ کو لاہور پولیس سے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہوتا، ممبران صوبائی اسمبلی نے شکوہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سی سی پی او کو ایم پی ایس کی شکایات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایم پی ایس کی شکایات پر سی سی پی او کو 2 روز قبل وزیر اعلیٰ آفس طلب کیا گیا تھا۔ پنجاب میں حکومت کے باوجود ایم پی ایس کے کام رک گئی۔ ایم پی ایس کے وزیر اعلیٰ کو لاہور پولیس سے متعلق شکایات کے انبار لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عرفان ملک سے۔ عرفان ملک بتائیے گا۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ ایم پی ایس کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ شکایت لگائی گئی تھی کہ لاہور پولیس جو ہے ان کے جو کام ہیں، جو جائز کام بھی ان کی جانب سے بتائے جاتے ہیں لاہور پولیس کو، تو وہ کام نہیں کیے جاتے اور صرف جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ان کو احکامات ملتے ہیں، صرف اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سی سی پی او لاہور کو طلب کیا گیا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں، جہاں پہ تمام ایم پی ایس جو تھے وہ بھی موجود تھے اور ان کی جانب سے جو اپنے گلے شکوے سی سی پی او لاہور کو بتائے گئے۔ اس پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے۔ سی سی پی او لاہور کو یہ ہدایت دی گئی کہ وزراء کے کام اور اس کے ساتھ ساتھ ایم پی ایس کے جو کام ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو پریورٹی کے اوپر کیے جائیں اور جو جائز کام ہیں اس کے اندر بلا تاخیر ان کے کام جو ہیں وہ کیے جائیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے ایم پی ایس کی جانب سے یہ شکوہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ان کی حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں ان کے جو جائز کام ہیں وہ نہیں کیے جاتے اور اس کی وجہ سے ان کو جہاں پہ علاقے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں پہ ان کے ووٹرز بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے۔ اسی بنا کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سی سی پی او لاہور کو چند روز پہلے اپنے آفس میں بلایا گیا تھا اور ان کو سخت ہدایات کی گئی کہ ایم پی ایس کے کام جو ہیں وہ پرائیورٹی پہ۔ جی بہت شکریہ عرفان ملک۔ لیک سٹی ہولڈنگ اور اسٹیٹ لائف انشورنس امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی میں مفاہمتی یادداشت کی حقیقت سامنے آ گئی۔ مفاہمتی یادداشت میں اسٹیٹ لائف انشورنس نے لیک سٹی سمیت 4 نامور گروپس کو مدعو کیا تھا۔ قانونی تقاضے پورے کرنا اسٹیٹ لائف سوسائٹی کی ذمہ داری تھی۔ 2003 میں بننے والی اسٹیٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی 19 سال سے اجاڑ پڑی ہے۔ 5300 کنال پر مشتمل اسٹیٹ لائف کوآپریٹو میں 6700 ممبر 19 سال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ لائف سوسائٹی کے ممبران نے متفقہ طور پر لیک سٹی کے ساتھ جانے پر اتفاق کیا۔ معاہدے کے مطابق اخبار، اشتہار، نیب، کوآپریٹو این او سیز فراہم کرنا سوسائٹی مالکان کی ذمہ داری تھی۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد تحریری معاہدہ ہونا باقی تھا۔ مختلف قانونی مراحل عبور ہونے سے پہلے ہی مفاہمتی یادداشت کو غلط رنگ دے دیا گیا۔ مفاہمتی یادداشت کے ہوتے ہی پلاٹوں کی قیمتوں میں 25 سے 30 لاکھ اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ 19 سال سے پھنسے ممبران کی امید کو مفاد پرست عناصر نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسٹیٹ لائف کوآپریٹو سوسائٹی کا قبضہ اور اراضی تاحال ممبران کمیٹی کے پاس موجود ہے۔ پی ایچ ایف ایم سی کے ملازمین کا دھرنا 10ویں روز میں پہنچ گیا ہے۔ پی ٹی آئی ایم پی عادل گجر دھرنے کے ملازمین سے مذاکرات کے لیے پہنچے۔ مذاکرات کے لیے ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو اسمبلی ہال میں بلایا گیا ہے۔ دھرنے کے باعث فیصل چوک کو تمام اطراف سے بند کیا ہوا ہے۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستے بنا دیے گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین مدنی سے۔ زین مدنی بتائیے گا۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں فیصل چوک پہ، جہاں پہ پنجاب رورل ہیلتھ امپلائیز ایسوسی ایشن کے جو ملازمین ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور آج دھرنے کو 10واں روز ہے۔ اس وقت میرے ساتھ چند ملازمین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین ہیں، جس میں پیرامیڈکس اور درجہ 4 کے لوگ ہیں۔ پنجاب کے 14 اضلاع سے ہم آئے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں 10واں روز ہے اور پچھلے 10 دنوں میں ہماری کسی سے بات نہیں سنی اور راجہ بشارت سے آج ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2004 میں چودھری پرویز الہی صاحب نے، جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا جس میں پنجاب رولر سپورٹ پروگرام کے نام سے جو کہ شروع کیا گیا تھا 2017 میں۔ پھر اس کو گورنمنٹ آف پنجاب نے، نون لیگ کی حکومت نے پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اصل مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا جو اصل مطالبہ ہے کہ ہم تقریباً 18 سال سے کنٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، آج تک ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہا اور چودھری پرویز الہی صاحب سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ مہربانی کر فرمائیں اور ہم سے شفقت رکھتے ہوئے ہمیں ریگولر کر دیں۔
जी बिल्कुल रेगुलर किया जाए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, दूसरे मुलाजमीन भी मौजूद हैं जो कि धरने में 10वां रोज़ है आज और वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगी आप? 10 रोज़ हो गए हैं, ख़वातीन मुलाजमीन जो मर्द मुलाजमीन हैं वो भी हैं। चले मर्द तो जो है वो धरना में आज आ जाते हैं कोई मुश्किलात अगर हो तो, लेकिन ख़वातीन भी जो है वो इस धरने में मौजूद है और पंजाब भर से आप लोग सारे इकट्ठे होकर आए हैं। जी हम लोग पिछले 18 साल से जो है वो परवेज़ इलाही साहब की बनाई हुई एक प्रोग्राम था पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम, उसमें वर्क कर रहे हैं और हम इस उम्मीद के साथ आए थे कि परवेज़ इलाही साहब जो है इस दफ़ा हम पे नज़रसानी करेंगे और वो उनके पिछले बयान हैं उनमें उन्होंने बताया हुआ है कि हम उनके कितने मेहनती और पुरअज़म लोग हैं। हम वो लोग हैं जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स उनके चला रहे हैं, वो वीरान इलाके जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी और मेडिसिन का कोई नामो निशान नहीं था, तब परवेज़ इलाही साहब ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम। फिर इनकी हुकूमत चली गई, फिर सीएम साहब के ये प्रोग्राम ख़त्म करके हमें एक कंपनी के हवाले PHFMC के हवाले कर दिया गया। लेकिन हम देखें 18 साल गुजर गए हैं हमें कंपनी टू कंपनी वर्क करते हुए। 18 साल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, इसलिए अब हमारे तो 18 साल कंपनियों की नज़र हो गए हैं। ये सिर्फ 14 अजला में है, ये जो कंपनियां हैं ना ये 14 अजला में की गई हैं। तो ये 14 अजला हम जो है सरापा एहतजाज हुए हैं कि आज सीएम साहब के पास इख्तियार है, काइंडली आप हम पे नज़रसानी करें। हम 18 साल से आपके मुंतज़िर हैं, आपकी नज़र करम के जो है मुंतज़िर हैं। हम 18 अजला से हैं, हम 10,000 के करीब मुलाजमीन हैं और 10,000 तकरीबन ये 10,000 ख़ानदान भी हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल 10,000 ख़ानदान हैं जो इस वक्त अपने मुतालबात तस्लीम करवाना चाह रहे हैं हुकूमत से। PTI के MPA आदिल गुज्जर आज आए थे, आपसे उनकी क्या बातचीत हुई और अब हमारे ये पता लगा कि असम्बली हॉल के अंदर बुलाया गया है, तो क्या अपडेट है इस हवाले से? दरअसल ऐसे हैं कि यहाँ पर आके तो सारे ही हमें कह देते हैं कि आप लोगों के हम मसाइल अंदर जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अंदर जाके डिस्कस हो नहीं रहे। आज भी हमारे तकरीबन 2 बजे से हमारी मुज़ाकराती टीम अंदर गई हुई है, लेकिन अब तकरीबन मेरे ख्याल 6 से ऊपर टाइम होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी हमें इत्तला नहीं मिल रही है कि वो हमारे कोई मसाइल हल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब माल रोड पर PHFMC मुलाजमीन के धरने के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। फैसल चौक में जारी धरने के खिलाफ माल रोड के ताजरों का एहतजाजी मुजाहरा। ताजरों के एहतजाजी मुजाहरे की क़ियादत सदर सुहेल महमूद भट्ट ने की। ताजरों के मुआशी कत्ल नामंजूर, नामंजूर की शदीद नारेबाजी। 2 हफ्तों से जारी एहतजाज पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। धरना ख़त्म ना कराया गया तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे, ताजर रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है। 12 दिन से ये धरना जो है हुकूमत की बेबसी पे खून के आंसू रो रहा है। वो तो खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन हमारा माशी कत्ल हो रहा है। यहाँ पे माल रोड के ताजर सब इकट्ठे होकर हुकूमत को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि ये धरना फौरी तौर पे ख़त्म करवाएं या अपनी हुकूमत ख़त्म करके अपने घरों को जाएं। ये बात बहुत ही अहम है कि यहाँ पर दुकानदारों का जो माशी कत्ल हो रहा है उनके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कहाना हलोक की खैरत के नाम पर लड़की और आशना के कत्ल का मामला। CCPO गुलाम महमूद डोगर का नोटिस, SP मॉडल टाउन से रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO का दोहरे कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि कहाना हलोक की गैरत के नाम पर लड़की और आशना के कत्ल का मामला सामने आया है। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने नोटिस ले लिया है, जबकि SP मॉडल टाउन से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। CCPO का दोहरे कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। जी सबसे पहले तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये लड़का लड़की जो हैं ये आपस में राब्ते में थे, 2-3 महीने पहले की बात है, उस वक्त से राब्ते में थे। इंसिडेंट ऐसे होता है कि जब ये बेसिकली दोनों फैमिलीज़ बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कोई करती हैं, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग करती हैं कि लड़की को वापस अपने घर पहुंचाया जाए। यूँ लड़का लड़की जो है वो इस क्राइम सीन तक पहुंचते हैं, मौके तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक प्री प्लान्ड पहले से ही जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो रेडी थे इस काम के लिए, और अभी हमने इसके लिए गिरफ्तारियां जो है वो हमारी जारी हैं। तो इन दोनों की जो है शनाख्त किस नाम से हुई है और हाँ जी, ये कत्ल किया जी फायरिंग किया बाप है, हाँ जी,
बेटा वगैरह उनके नाम क्या बराबर है? हाँ जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम थोड़ा सा इसको अभी डिटेल में नहीं डिस्कस करते। लाहौर के 3 मेगा मंसूबों को रवां साल फंड देने की इजाज़त दे दी गई। शाहदरा फ्लाईओवर, समनाबाद अंडरपास और कचहरी चौक की रीमॉडलिंग के मंसूबे रवां साल शुरू किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 3 मेगा मंसूबों को रवां साल ही फंड देने की इजाज़त दे दी। शहर के 3 मेगा मंसूबों पर रवां साल 6 अरब रुपए का फंड दिया जाएगा। तीनों मंसूबों पर 13 अरब रुपए से ज़ायद के फंड की मंजूरी दी जा चुकी है। शाहदरा में 9 अरब रुपए की मालियत से फ्लाईओवर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे तामीर होगा। समनाबाद में 2 अरब रुपए मालियत से नए अंडरपास की तामीर का तखमीना है। कचहरी चौक रीमॉडलिंग के लिए 4 अरब 88 करोड़ रुपए का अंदाज़ा लगाया गया है। LDA हुकाम की शाह खर्चियाँ ग्रेड 17 के अफसरान की गाड़ियों का बहाना बनाकर 15 करोड़ की लागत से 37 लग्जरी गाड़ियाँ मंजूर करा लीं। वज़ीर आला पंजाब को गवर्निंग बॉडी के इजलास में 15 करोड़ की लागत से 37 गाड़ियों की खरीदारी का एजेंडा पेश किया गया। वज़ीर आला के सामने ग्रेड 17 के 602 जूनियर अफसरान की गाड़ियां ना होने का बहाना बनाया गया। महंगी गाड़ियां खरीदने के चक्कर में LDA अफसरान की परफॉर्मेंस को गाड़ियां ना होने से जोड़ दिया गया। वर्किंग पेपर्स में 290 गाड़ियों की कमी का रोना रोया गया। गैर कानूनी तौर पर 3-3 गाड़ियां रखने वाले LDA अफसरान ने ऐवान वज़ीर आला को आदादो शुमार में घुमा कर रख दिया। 10 गाड़ियां 1000 सीसी से ऊपर जबकि 20 1300 सीसी से ज़ायद मांगी गईं। हाई प्रोफाइल लग्जरी 1600 सीसी से ऊपर 7 गाड़ियों की डिमांड की गई। जनरल प्रैक्टिस में ग्रेड 17 के अफसरान को 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी अलॉट नहीं की जाती। दूसरी जानिब दफ्तरों में बैठे अफसरान को सरकारी गाड़ियां और पेट्रोल देना हुकूमत की कफ़ायतशारी पॉलिसी की भी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। लेस्को ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। बकेट क्रेन समेत अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गाड़ियों की खरीदारी के बजट की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कंपनी 3 कैटेगरीज की बुनियाद पर गाड़ियों की खरीदारी करेगी। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बकेट क्रेन्स के लिए 65 करोड़ और ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी के लिए 24 करोड़ की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब कंपनी ऑपरेशनल कैटेगरी से अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी कर चुकी है। ज़राए ने बताया है कि लेस्को की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी नहीं दी। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी से कबल ही करोड़ों का बजट मुख्तस कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी पर अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी होगी। दूसरी जानिब शहर भर में गैस प्रेशर डाउन हो गया। मौसम में तब्दीली की वजह से गैस तलब में इजाफा होने पर शॉर्टफॉल बढ़ गया। खाने पकाने के औकात में गैस फराहमी नामुमकिन हो गई। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर गैस की तलब में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर रीजन में गैस की डिमांड में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि तलब के मुताबिक रसद ना होने की वजह से कंपनी को सिस्टम चलाने में मुश्किलात का सामना है। गैस की किल्लत की वजह से शहर भर में प्रेशर डाउन हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने खाना पकाने के औकात में प्रेशर के साथ गैस फ्राहम करने की हिदायत की थी, ताहम सिस्टम पर गैस की कमी की वजह से शेड्यूल के मुताबिक गैस फ्राहम करना नामुमकिन होता जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, CCPO गुलाम महमूद डोगर से शिया उलमा कौंसिल के वफ्द की मुलाकात। सदर शिया उलमा कौंसिल लाहौर कासिम अली कासमी ने वफ्द की क़यादत की। मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, हाफिज कासिम रजा नकवी, अल्लामा असगर आफ चिश्ती, चौधरी अरशद गुज्जर वफ्द में शामिल। सैयद जाफर अली शाह, चौधरी सगीर अब्बास विर, कासी अब्दुल गफ्फार, मलिक आसिफ अली, हाफिज शुएब रिजवी और दीगर वफ्द में शामिल थे। आपको बताते चलें कि CCPO गुलाम महमूद डोगर से शिया उलमा कौंसिल के वफ्द ने मुलाकात की है। सदर शिया उलमा कौंसिल लाहौर कासिम अली कासमी ने वफ्द की क़यादत की। मुफ्ती सईद आशिक हुसैन, हाफिज कासिम रजा नकवी, चौधरी अरशद गुज्जर वफ्द में शामिल। अल्लामा असगर आफ चिश्ती, सैयद जाफर अली शाह, चौधरी सगीर अब्बास विर्क भी मौजूद। काजी अब्दुल गफ्फार, मलिक आसिफ अली, हाफिज शुएब रिजवी और दीगर वफ्द में शामिल थे। मैंने अली परवेज मलिक समेत दीगर ने लीगी रहनुमा और साबिक चेयरमैन बिलाल अहमद भट्ट के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। लीगी रहनुमा और साबिक चेयरमैन बिलाल अहमद भट्ट के वालिद के इंतकाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ताज़ियत की। MNA अली परवेज मलिक, साबिक डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक, आमिर भट्ट, हाफिज मोहम्मद अहमद, सेठ मोहम्मद परवेज ने लीगी रहनुमा से इजहार अफसोस किया। फहद भट्ट, रफाकत शाह समेत दीगर भी मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं ने मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की।
जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब हसन मुर्तज़ा ने इजरा में कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हसन मुर्तज़ा ने रियाज जट से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की और फातह पढ़ी। हसन मुर्तज़ा के हमरा नसीम साबिर, अफराज नकवी, बशारत बशी मौजूद थे। सज्जाद नज़ीर, अल्ताफ़ हैदर जट, आकिब सरवर और हुसैन जट भी हसन मुर्तज़ा के हमरा थे। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास ऐवान में 5 बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि पंजाब एहसास प्रोग्राम बिल 2022 बिल कसरत राय से मंजूर किया गया है। ऐवान में बिल की मंजूरी के लिए कवानीन मुअत्तल कर दिए गए। पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी के बगैर बिल असेंबली को वापस भिजवा दिया था। पंजाब सीड कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। फैक्ट्रीज तरमीमी बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। फैक्ट्रीज तरमीमी बिल 2022 ऐवान ने पास करके गवर्नर को भेजा था। गवर्नर पंजाब ने बिल बगैर मंजूरी के असम्बली को वापस भिजवा दिया था। जंगलात तरमीमी बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर हुआ। सूबाई वजीर मोहम्मद बशारत राजा ने बिल ऐवान में पेश किया। आपको हम खबर से आगाह करते चले कि पंजाब असम्बली का इजलास ऐवान में 5 बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए हैं। पंजाब एहसास प्रोग्राम बिल 2022 कसरत राय से मंजूर किया गया है। ऐवान में बिल की मंजूरी के लिए कवानीन मुअत्तल कर दिए गए। पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग कॉन्वोकेशन हुआ। BS की 454 तालिबात में डिग्री और मेडल्स तकसीम किए गए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग का 8वां कॉन्वोकेशन हुआ। DC लाहौर मोहम्मद अली ने खसूसी शिरकत की। BS सेशन 2017 से 2021 की 454 तालबात को डिग्रियां और मेडल्स दिए गए। DC लाहौर का कहना था तालबात का असल इम्तिहान पढ़ाई के बाद शुरू होता है। डिग्री तो आपने ले ली, इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, आपकी 7 मेडल ने जो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट के बारे में बताया, उसमें बहुत सारी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी या गैर निसाबी आम निसाबी सरगर्मियाँ थी, उनको देख के भी मुझे ये एहसास हुआ कि ख़वातीन का किरदार जिस मुल्क में, किसी भी दुनिया में, जिस कौम ने, जिस मुल्क में तरक्की की है, वहाँ ख़वातीन मर्दों की शाना बशाना रही हैं। तालबात में 3 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर मेडल, 7 मेरिट सर्टिफिकेट्स और 43 रोल ऑफ ऑनर्स भी तकसीम किए गए। आज हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था। इट्स आवर कॉन्वोकेशन डे और वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और मेरे फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि बॉटनी को ही परस्यू करूँगी और इंशाल्लाह उसी चीज़ को आगे लेके चलूँगी। मैं इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा जो एक गोल था कि एक डिग्री मिले, तो मेरी ख्वाहिश थी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते, पर इस टाइम नहीं है। मिस हिम। तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस शहजाद मुनव्वर, ACCT सोनिया सदफ, प्रिंसिपल डॉक्टर निगत जहीर जफर ने शिरकत की। कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर नीला अल्ताफ समेत फैकल्टी, असातिज़ा और तालबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कॉन्वोकेशन के इख्तिताम पर मेहमानों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन हसन जावेद के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।